والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا صدق اللہ العظیم وصدقہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے تمامی احباب درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ محبت سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے کہ خالق کائنات نے، رب السماوات نے ہم سب کو آج ماہ رمضان کے دوسرے عشرہ کی خوبصورت گھڑیوں میں، خوبصورت دن کے دامن میں، دنوں کے سردار دن جمعہ کی حسین گھڑیوں میں اللہ کریم نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم ہمارا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اور شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حسین زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ماہ رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ کریم اپنے محبوب کی کثیر امت کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے حضور کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، بڑے بڑے بدکاروں کی بدکاریاں دھل جاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس کے خوبصورت روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جو موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، کہ ہم جو اپنے مالک سے سودا کرتے ہیں، اپنے رب سے جو سودا کیا جاتا ہے، اس سے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرا مالک اپنے بندے کے ساتھ لین دین میں اپنے بندے کو کتنی فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا بندہ جو میں رب کو قرض دے۔ بھلا اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ جس کی ساری خدائی اور ساری مخلوق جس کی مقروض ہے، اسے قرض کون دے سکتا ہے؟ ایک ایک ذرہ جس کی مرضی پہ چلتا ہے اور ایک ایک ہوا کا جھونکا جس سے پوچھ کے گزرتا ہے، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک اور زمین سے لے کر تحت الثری تک، دنیا کا کوئی ایسا ذی روح نہیں ہے جو اس کے ٹکڑوں پہ نہ پلتا ہو، جو اپنے مالک کی عطا کے بغیر زندہ رہ سکے۔ ایک ہوا میں اڑنے والا پرندہ اور ایک زمین پر رینگنے والا کیڑا جب اس کی طرف توجہ سے دیکھیں اور دھیان کریں تو وہ بھی ہوا میں اڑتا بھی رب سے رزق لیتا ہے
اور یہ زمین پر رینگتا ہوا بھی رب سے رزق لے جاتا ہے. تو جس کی عطا سے ساری کائنات چل رہی ہو اس کو کون قرض دے سکتا ہے؟ لیکن اس نے پھر کہا بھی ہے تم میں کوئی ایسا بندہ جو میں اللہ کو قرض دے؟ عرض کی یا اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا اس سے مراد یہ ہے میرا وہ بندہ جس کو میں نے مال دیا ہے، جس کو میں نے دنیا کی ساری سہولتیں اور آرام اور عشرت عطا کی ہے، میں اب اپنے اس بندے کو چیک کرنا چاہتا ہوں بھی ساری عطا تو میری ہے اور میری عطا پر تو کتنا راضی ہے، اور اس بندے سے مطالبہ ہے بھی تو ایسا کر مما رزقناہم ينفقون، جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس کو میرے بندوں کے اوپر خرچ کر، اور اگر تو میرے بندوں پر خرچ کرے گا تو مجھے اللہ کو قرض دے گا. مال کس کا ہے؟ اللہ کا. دینے والا وہ ہے، اور اگر اس کے مال کو اس کی راہ پر خرچ کر دیا جائے تو گویا یہ مال اٹھا کے اسی کو قرض دے دیا جاتا ہے. اس مثال کو بڑے آسان واقعہ سے سمجھنا زیادہ مفید ہو جاتا ہے. گو کہ یہ واقعہ بڑا زد و عام ہے، ہر زبان پہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. ایک بوڑھا شخص اور ایک بڑھیا گاؤں کے باہر ایک چوراہے کے اندر ان کی جھونپڑی ککھوں کی تھی، اور وہ روز بھوک سے تڑپتے، کبھی کوئی نوالا مل جاتا، روز موت کے انتظار میں. اب جب آپ کے پیٹ کی ضرورت پوری نہ ہو، انسان روز مرے اور روز دیے، اس سے بہتر ہے کہ انسان ایک دن مر جائے. اب وہ بوڑھا شخص اور بڑھیا عورت نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. جب گزر ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے پیارے لاڈلے پیغمبر، ہم نے سنا ہے کہ تو جا کے کوہ طور پہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، تو تیری اللہ سے بڑی خوبصورت ملاقات رہتی ہے، تیرا رب کے ساتھ بڑا قریب کا تعلق ہے، اس نے تجھے اپنا بڑا قرب دیا ہوا ہے اور تو اس کے قرب میں بڑی عظیم زندگی بسر کر رہا ہے. ہمارا بھی ایک سوال ہے، اور وہ سوال اگر تو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے تو ہو سکتا ہے ہماری بگڑی بات بن جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے اللہ سے صرف اتنی عرضی کرنا بھی جو ہمارے حصے کا رزق ہے وہ بس مجھے ایک دفعہ ہی دے دے، ہم اس رزق پر 2 دن کھائیں یا 4 دن کھائیں، چلو ہماری زندگی تو اچھی بسر ہو سکے، وہ 4 دن تو سکھ کے بسر ہو سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کیا یا اللہ وہ فلاں بوڑھا شخص ہے اور فلاں بڑھیا عورت ہے، اس کا تو نے جو رزق مقرر کیا ہے انہیں دے دے، تاکہ وہ 2 دن کا ہو یا 4 دن کا، وہ ایک بار کھا کر سکھ کی موت مر جائیں. اللہ نے کہا اچھا آج ان کا رزق پہنچ جائے گا، پہنچانے والی ذات تو وہ ذات ہے. وہ رزق پہنچ گیا. حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا کہ ان کو ایک بوری مثال کے طور پہ گندم کی اللہ تعالیٰ نے دے دی بھی یہ بوری تمہارے حصے کا ہے. وہ بڑھیا مائی اور بوڑھا شخص جو روز جیتے تھے اور روز مرتے تھے، ان دونوں نے مل بیٹھ کے ایک مشورہ کیا بھی یہ 4 دن کا سامان ہے، اے دنیا دن 4 دیارے تے سدا نہیں تھے رہنا. انہوں نے کہا 4 دن کی یہ گندم ہے اور 4 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، کیوں نہ ان 4 دن کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ یہ گندم اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی جائے. اس گندم کو، اس اناج کو ہم اپنے رب کی راہ پہ تقسیم کر دیتے ہیں. 4 دن بھی بعد مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ سے یہ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے اپنے حصے کا اناج تیرے بندوں کو کھلا دیا ہے، اپنے حصے کا مال تیرے بندوں کو دے دیا ہے. اب اب اسی وقار انہوں نے چکی رکھی اور جتنی ہمت تھی اس آٹے کو پسائی کی، اور پھر انہوں نے وہ روٹیاں پکانا شروع کی. جو اس چوراہے سے گزرتا تھا اسے بٹھا کے اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو کھلا دیتے تھے. اب ہوا کیا، وہ مال جب ختم ہونے پہ آیا اللہ نے یہاں پہ کیا کہا، کردن حسنا، کون ہے جو مجھے قرض دے. اب کسی کو قرض دیا جائے اور حسنا کا مطلب یہ ہے کہ میں پھر حسن سلوک کروں گا، میں اچھا قرض لوٹانے والا ہوں. ہم کسی کو قرض دیں تو کیا ہوتا ہے، قرض کے بدلے میں قرض ملتا ہے. آج کل تو ویسے قرض بھی واپس نہیں ملتا، آج کسی کو قرض دے بیٹھے تو قرض بھی واپس ملتا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بڑا بھی اچھا برت جائے آپ سے وصول کیا ہوا قرض، پھر آپ کو قرض کے طور پر کیا کرے گا، واپس کر دے گا. لیکن اللہ کو دیا ہوا قرض عام قرض نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے جب تم قرض دو گے
और मैं जब उसको लौटाने का वक्त आएगा, आप मुझे 1 रुपया कर्ज दे तो मैं उस पर 700 गुना इजाफा करके तुम्हें अता फरमाऊंगा। अब वो एक बोरी थी गंदम की, तो वो तो खत्म हो गई, लेकिन जब अल्लाह को देने की बारी आई, वो कर्ज जो उसने उसके बंदों को खिलाया, बुरी औरत ने, उस बुरे मर्द ने, वो 1 बोरी उन्होंने खिलाई, अल्लाह ने 7 बोरियां और अता फरमा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता रहा 2 दिन 3 दिन, और बताया गया था कि इनके पास 4 दिन का खाना है। हजरत मूसा ने क्या देखा, वहां पे वो बुढ़िया औरत और बूढ़ा शख्स, उनके घर पर एक मजमा है और कई लोग वहां से खाना खाते हैं और जा रहे हैं। हजरत मूसा का गुजर हुआ, उन्होंने ये मेला सजा हुआ देखा तो बड़े परेशान हो गए। जो 1 और 2 बंदों पे तकसीम करने से 4 दिन बसर होने थे, आज मेरी आंखें क्या देखती हैं कि कई लोग यहां से खाना खा रहे हैं और जा रहे हैं। हजरत मूसा गुजरे, जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तूने तो कहा था उनका 4 दिन का खाना है और वो 4 दिन जिंदा रहेंगे। अल्लाह मैंने तो वहां पे देखा कि हजारों लोग खा रहे हैं और तूने इतना माल उन्हें अता फरमा दिया। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, मूसा वो मैंने उनको माल दिया, उन्होंने मेरा अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेरे माल को उठा के मेरी बारगाह में कर्ज दे दिया। माल तो मैंने दिया था, अब उस माल को उठा के मेरी बारगाह में क्या करते हैं, कर्ज देते जा रहे हैं और उनका कर्ज अब मैं चुकाता जा रहा हूं। वो मुझे 1 देते हैं और मैं उन्हें 70 देता हूं। अब अल्लाह ने कहा वो जब उनके पास मेरा माल पहुंचता है, वो उठा के सारा मुझे कर्ज दे देते हैं। अब मूसा बता, जब वो मुझे कर्ज देते हैं तो मैं अपने बंदे का कर्ज उतारता हूं और वो मैं कर्ज उतारता जाता हूं, वो कर्ज और बढ़ाते जाते हैं। वो माल उठा के मेरी बारगाह में दोबारा मुझे पेश करते जाते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें ये यहां पे जो बात बताई वो ये बताई, ऐ मेरे बंदे माल मेरा है और मैंने तुझे दिया है। माल तो मेरा है, मैंने तुझे दिया है। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और साथ तुम्हें मैंने हुक्म दिया है कि इसे अल्लाह की राह पर खर्च किया कर। इसे मालिक की राह पर क्या कर, उस मालिक ने जब दिया है तो फिर लौटा कर उस मालिक की बारगाह में खर्च किया जाए। अब हमारा आम सा मकूला यह है कि जब हम माल ले आते हैं तो गिनने की हमारी आदत है। हम गिनते हैं कि मेरा माल कितना है, गिना तो वो तकरीबन एक बंदे ने 1,00,000 रुपया गिन के रख दिया, मेरा ये 1,00,000 रुपया है। उस 1,00,000 में से जब खर्च करेंगे तो हम घर वालों से या अपने आप से ये बात जरूर करेंगे कि तेरे 1,00,000 में से 2,500 रुपए कम हो गए, तूने खर्च कर दिए। अब जाहिरी तौर पर उनकी गिनती क्या होती है, कम होती है। अल्लाह कहता है लेकिन जब तुम मेरी बारगाह में माल को खर्च करोगे, जाहिरी गिनती कम होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उसको 7 गुना बढ़ा के तुम्हें वापस अता फरमा दूंगा। कितना? 7 गुना। और एक रिवायत है कि जब माह रमजान का मुबारक महीना आता है तो जो बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करता है, वो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह ताला उसे 70 गुना वापस अता फरमा देता है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने बड़े मालदार थे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी। अल्लाह माल दे और साथ उसे दीन पर खर्च करने का जिगरा भी अता फरमाए, वरना फिरौन, नमरूद, शदाद, इंसान के अंदर वो बीमारी लाख हो जाती है जो हवस से दौलत के अंदर इंसान मर जाता है। हजरत उस्मान ने, अल्लाह ने माल दिया, इस माल को लेके चले गए तो मदीने में एक दफा कहत पड़ गया, भूख और प्यास ने आन डेरे डाले। हजरत उस्मान जब गए और एक बंदे के पास उस वक्त में जब जहां से कहीं अनाज न मिलता हो, उसके पास अनाज की बोरियां हो तो उसको कितने मुनाफे मिलेंगे। एक जगह पे गए तो शाम के ताजर आए हुए थे, उन शाम के ताजरों ने उन्हें कहा भी आप ऐसा करें, अपने इस माल का 2 गुना हमसे ले लें, इस माल का 2 गुना हमसे ले लें और ये माल हमें अता फरमा दे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मेरे माल का भी जो कीमत है वो कम लगी है। दूसरे के पास गए, उसने कहा 3 गुना तेरे माल का मैं देता हूं, आप मेरे इस माल पर, हजरत उस्मान से कहने लगे 3 गुना हमसे ले ले और अपना माल हमें अता कर। हजरत उस्मान गनी ने कहा अभी भी मेरे माल की कीमत पूरी नहीं लगी है। चौथा पांचवा करते करते एक बंदे ने कहा 10 गुना, आपने 1 रुपए की चीज खरीदी हो और आपको उस पर 10 रुपए मिल रहे हो तो इंसान की खुशी की इंतहा नहीं रहती है। उसने कहा 10 गुना मुझसे ले लो और अपना माल मुझे दे दो। हजरत उस्मान गनी मुस्कुरा पड़े, आपने कहा मेरे माल को अभी पूरी कीमत लगी। उन्होंने कहा ये 10
से बढ़कर अब कोई आपको एक धेली भी ज्यादा नहीं देगा। हजरत उस्मान ने कहा कि तुम्हारा वहम है, मैं इससे कई गुना ज्यादा ये महंगा माल बेचूंगा। उन्होंने कहा हम देखते हैं। अब वो सारे ताजरों ने आपस में इत्तेहाद कर लिया, वे उस्मान से माल अब खरीदना नहीं है, इससे माल नहीं खरीदना। सारे ताजर इत्तेहाद करके बैठ गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे कहने लगे अब तेरी असल कीमत जो रासल माल है हम उस पर भी नहीं खरीदते हैं। हजरत उस्मान गनी फिर मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया देखो मैंने तुम्हें कहा है मैं इससे कई गुना बढ़ के अपने माल को आज बेच के जाऊंगा। उनका हम देखते हैं कौन तेरा माल लेता है। हजरत उस्मान गनी ने मदीने के चौराहे के अंदर अपने ऊँटों से गल्ला उतारा और उस गल्ले के मुंह खोल दिए और ऐलान किया आज जिस बंदे को जरूरत है ये मेरा माल पड़ा है, अल्लाह के नाम पर वो ले जाए, ये मेरा माल है। और जिस बंदे को जरूरत है, रोटी के लिए लोग तरस रहे थे, काहत साली थी, अब मेला लग गया। अब हजरत उस्मान ने अपना सारा माल अल्लाह की राह पे तकसीम कर दिया। ताजरों ने कहा उस्मान तुमने खसारे का सौदा किया है। उसने कहा मैंने खसारे का सौदा नहीं किया, मैंने अपने रब के साथ तिजारत की है, अपने अल्लाह के साथ क्या की है, तिजारत की है। वो कहता है मेरे बंदे तू मुझे एक दे, मैं तुझे उसके बदले 70 अता फरमाऊंगा। तुम तो 10% मुनाफा दे रहे थे, मेरे अल्लाह से जो मेरी तिजारत हुई है, मेरे अल्लाह ने मुझे कहा ए उस्मान तू मुझे एक दे, मैं तुझे 70% ज्यादा अता फरमाऊंगा। जब बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करता है तो उसके खर्च करने पर अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को 70 गुना बढ़ा के माल अता फरमा देता है। अब आप देखें, अब मैं आज एक हदीस पाक पढ़ रहा था और उसे पढ़ते पढ़ते इतना मुझे लुत्फ आया कि मेरी हैरत गुम हो गई। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने उस हदीस पाक में एक मसाल दी जो इतनी बड़ी मसाल है कि इंसान अगर इस बात को थोड़ा सा सोच ले तो वो कभी भी अल्लाह की राह में माल खर्च करने से अपना हाथ ना रोके। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार ने आपने फरमाया लोगों को सवाल करते हुए मुझे यह बताओ सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन है। जी अल्लाह के महबूब ने अपने सहाबा से गुलामों से पूछा मुझे यह बताओ कि सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई है और आप ही सबसे ज्यादा माल क्या करने वाले हैं। और मैं मोहम्मद की क्या बात करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार जब खर्च करते थे तो ऐलान करवाते थे मदीने में ऐलान कर दो कोई बंदा जिसको तलब और जरूरत हो मैं मोहम्मद के दरवाजे से ले जाए। और अपना आलम यह था कि गज़वा खंदक के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी आए, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो जो हम खंदक खोद रहे हैं उसके अंदर एक पत्थर आ गया है और हम पूरा जोर लगा चुके हैं वो टूटता नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उठे, खुदा अपने हाथ में ली और लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वार किया तो वो एक वार में रेसा रेसा हो गई। पत्थर था बड़ा, सरकार ने उस पर जब वार लगाया तो वो रेसा रेसा हो गई। जब रेसा रेसा हुई तो सहाबा कहते हैं हमारी आंख से पट्टी खुल गई, हमारे बतन पर एक एक भूख की वजह से पत्थर बांधा था। लेकिन जब सरकार ने उस खुदाल को जमीन पे मारा और सरकार के बदन से पत्थर, सरकार के बदन से कपड़ा था, हमने देखा कि सरकार के बदन पर 2 पत्थर बांधे हुए। अपनी भूख का आलम यह है। लेकिन जब सरकार सखावत फरमाते हैं, अल्लाह के महबूब जब अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हैं तो 3 दिन बाद एक बंदा आया ऐलान के 3 दिन बाद, आज हम एक देग पका ले तो हम क्या कहते हैं लंगर खत्म हो गया, महफिल खत्म हो गई है, अब तो लेट आया है। लेकिन वो बंदा 3 दिन बाद आया, अल्लाह के महबूब की सुन्नत देखे, सरकार की मोहब्बत देखे अपनी उम्मत से। उसने कहा हुजूर मैंने ऐलान सुना था आप अल्लाह की राह में माल खर्च कर रहे हैं तो मैं भी आया था। तो साथ बैठे हुए गुलामों ने कहा मैं तुम्हें पता ये तो 3 दिन पहले की बात है, आज तो माल खत्म हो गया। सरकार ने उन्हें रोक दिया, कहा जहान का माल खत्म हो सकता है, मोहम्मद का माल खत्म नहीं हो सकता। जहान वालों की अता रुक सकती है लेकिन सरकार की अता कभी रुकने वाली नहीं है। अब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आपके पास तो इस वक्त जाहिरी तौर पे कुछ भी नहीं है। कहा हाँ मेरे पास जाहिरी तौर पे कुछ भी नहीं है लेकिन मैं मोहम्मद का नाम तो बिकता है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया जा मदीना में और किसी भी दुकानदार को मैं मोहम्मद का नाम जमानत रखकर जो तेरी जरूरत है वो माल तू ले जा, जो तेरी जरूरत है वो माल तू ले जा और उस माल का कर्ज मैं मोहम्मद खुद अदा फरमा लूंगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सबसे बड़े अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले आप हैं। लेकिन हुजूर ने फिर फरमाया मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा खर्च करने वाला कौन है। उन्होंने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है कि अब सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा खर्च करने वाली जात का नाम अल्लाह है। सबसे ज्यादा खर्च करने वाला कौन है, अल्लाह है। और देखो जब से कायनात का वजूद आया है
हर एक की जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं? आदम अलैहिस्सलाम से हम शुरू कर ले, आज के दिन तक अल्लाह हर को दे रहा है कि नहीं दे रहा? हर एक को देता है, हर एक खाता है और हर एक की जरूरत पूरी हो रही है। वो मालिक देता जाता है। कहा सरकार ने यहां पे मसाल देकर कहा जब अल्लाह देता जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि हर पिछले दिन से अगले दिन माल बढ़ रहा है। कभी ये आलम था कि एक रोटी से पूरा खानदान पलता था, एक रोटी के 4 टुकड़े करते थे, फिर दौर बदला, बात रोटी रोटी पे आ गई, फिर अगले दौर में पहुंचे तो एक घर में 4 चूल्हे डाल दिए गए। अब के दौर में देखे तो इंसान को इतना अनाज मिल गया है कि वो खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह, सरकार ने कहा सबसे बड़ा खर्च करने वाला अल्लाह है और वो खर्च करता जा रहा है, माल बढ़ता जा रहा है। अल्लाह खर्च कर रहा है और माल में कोई कमी है? अल्लाह ताला का माल खर्च होता जा रहा है और माल बढ़ता जा रहा है। अब ये मिसाल दे के सरकार ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया बेशक अल्लाह ने मुझे हुक्म अता फरमाया, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद तो लोगों पर खर्च किया कर। और खर्च करने से मिलता क्या है? अल्लाह ने कहा लोगों पे क्या किया कर? खर्च किया कर। सरकार ने कहा, अल्लाह ने मुझे कहा मेरे बंदों पर खर्च किया कर। ऐ मोहम्मद तू लोगों पर खर्च करेगा, मैं अल्लाह तेरे ऊपर खर्च करूंगा। ऐ प्यारे महबूब तू मेरे बंदों पर माल को क्या करेगा? खर्च करेगा। कभी मेरी मस्जिद बनवा दी, कभी मदरसे के तुलबा को तूने खिला दिया, कभी तूने किसी मोहल्ले के मस्कीन को दे दिया, कभी किसी यतीम के सर पे हाथ रख लिया, कभी किसी बेसहारे का सहारा बन गया। अलबत्ता हदीस पाक एक में सरकार ने फरमाया आपने किसी बेसहारे को लिबास पहना दिया, आपने बेसहारे को क्या किया? और आपको पता है क़यामत वाले दिन किसी बंदे के वजूद पर लिबास नहीं होगा। क़यामत वाले दिन किसी बंदे के बदन पर लिबास नहीं होगा और उस लिबास के ना होने से इंसान की तवज्जो उधर नहीं जाएगी, क्योंकि इंसान को अंजाम की इतनी फिक्र होगी कि अपने बदन की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं लेकिन जिसने दुनिया के अंदर किसी मस्कीन को, किसी यतीम को, किसी बेसहारा को, किसी तालिब इल्म को लिबास पहना दिया, सरकार ने फरमाया अल्लाह क़यामत वाले दिन उस बंदे को लिबास अता फरमाएगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि तू बंदों पर क्या किया कर? मेरा माल खर्च किया कर, मैं तुझ पे माल खर्च करूंगा। अब वो बंदा कितना खुश नसीब है, वो कितना बंदा आला है कि जो अल्लाह के बंदों पर माल खर्च करता है और अल्लाह सारा रहमत बन के उसके ऊपर बैठ के उस पर माल खर्च करता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे हुजूर ने वजाहत की, फरमाया अल्लाह का हाथ नेमतों से भरा हुआ है। अल्लाह का हाथ नेमतों से, जब बंदा उसके बंदों पर खर्च करता है अल्लाह अपने नेमतों का हाथ खोल देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस पे अपनी नेमतों का क्या करता है? हाथ खोल देता है। इधर बंदा गिन गिन कर अल्लाह की राह में खर्च करता है और उधर अल्लाह बेहिसाब अपने बंदे को अता फरमा देता है। अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने फरमाया देते हुए हिसाब न रखा कर। मालिक की बारगाह में माल देते हुए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कभी हिसाब ना किया करो, क्योंकि जब अल्लाह की अता का वक्त आता है तो वो बंदे को बेहिसाब ही अता फरमा देता है। मालिक अपने बंदे को बेहिसाब इतना माल देता है कि इंसान की हैरत गुम हो जाती है, उसकी गिनती हो सकती नहीं है। अब अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने किसी को तौफीक तो दी है लेकिन माल नहीं दिया है, उसका दिल करता है कि मेरे पास होता और मैं भी अल्लाह की बारगाह में दे देता। या यहां से कोई बंदा तकड़ा उठा तो उसने कहा जी 1 लाख रुपया मस्जिद को दे दिया, साथ बैठे हुए बंदे की जेब में सिर्फ 2 रुपए या 10 का नोट है या 20 के हैं, उसके दिल में हसरत आई या अल्लाह काश तू मुझे देता तो मैं भी तेरी राह में क्या करता? खर्च करता। लेकिन वो उठा, उसकी तबीयत ने बोझ समझा तो उसने 20 में से 10 रुपए निकाले और दे दिए। तो ये 10 रुपए मैं अल्लाह के नाम पर क्या करता हूं? देता हूं। वो 10 रुपए उसने निकाल के क्या किए? दे दिए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कभी कभी ऐसा होता है बंदा 1 देता है, अल्लाह की बारगाह में लाख गिने जाते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कभी कभी इंसान के लिए ऐसा वक्त भी आ जाता है वो अल्लाह की राह में 1 देता है, अल्लाह जब लिखने की बारी आता है फरिश्ते को कहता है 1 लाख इसका लिख दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि एक आदमी के पास सिर्फ 2 दिरहम थे, एक आदमी के पास सिर्फ 2 दिरहम थे, उसने वो 2 दिरहम लिए, इसमें से 1 जाके अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और 1 को जेब में डाल दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा तेरा क्या गुमान काम करता है, उसे अल्लाह कितना सवाब देगा? उसने कहा या रसूल अल्लाह 1 का 70 देगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया नहीं, उसे अल्लाह ताला 1 के बदले में लाख दिरहम खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा, क्योंकि उसने अपनी कुल कीमत में से आधा माल अपने रब की बारगाह में पेश कर दिया कि मेरे अल्लाह ने मुझसे मांगा है, तो उसने अपना ये माल अल्लाह ताला की बारगाह में क्या किया? पेश फरमा दिया। तो इस माल पर अल्लाह ताला उसको कितना अता फरमाएगा?
1,00,000 दिरहम का अल्लाह ताला उसे सवाब अता फरमाएगा। अब आप इसी वकार माह रमजान वो हसीन महीना है जिसमें नेकी एक करें तो 70 के सवाब ले जाए। इधर अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करें, उधर अल्लाह की बारगाह से 70 गुना माल लेकर अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें जो दर्श दिया है वो ये दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी रब की राह के अंदर माल को खर्च करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, सैयदना अबू हुरैरा ही रावी है, उन्होंने फरमाया मोमन को उसके मरने के बाद जो उसके आमाले साले और उसकी नेकियां पहुंचती हैं उनमें से ये 8 काम है। जो बंदा ये 8 काम कर जाए मरने के बाद भी उसकी नेकी का दरवाजा बंद नहीं होता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहला इल्मन अल्लमहु व नशरहु, सरकार ने फरमाया पहला ये अल्लाह ने उसे जितना इल्म दिया है वो लोगों में बांटता फिरे। अल्लाह ताला ने उसे जितना इल्म दिया उस इल्म को क्या करे कि लोगों के अंदर बयान करता रहे कि मुझे मालिक ने ये दिया, मुझे कुरान नाजरा आता है, चलो मैं आगे बच्चों को नाजरा पढ़ा दूं। दूसरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालदन सालिहन तरकहु, जिसने कोई नेक बच्चा जना उसकी तरबियत अच्छी की तो वो नेकी बेटा करेगा, सवाब बाप को पहुंचेगा। नेकी बेटा करेगा, सवाब बाप को पहुंचेगा। फिर फरमाया मुसहफन वर्रसहु, अल्लाह ने उसे कुरान दिया था तो उसने कुरान आगे लोगों को पढ़ने के लिए दे दिया। उसे अल्लाह ने कोई किताब दी जिसमें नेकी दर्ज थी तो उसने वो किताब आगे दे दी ताकि ये बंदे पढ़ेंगे। तो सरकार ने फरमाया जब तक वो किताब पढ़ी जाएगी उस बंदे को नेकी का सवाब पहुंचता रहेगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिदन बनाहु, जिसने अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, जिसने अल्लाह का घर। और हुजूर से पूछा गया हुजूर घर तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम बनाना चाहें तो क्या करें? तो सरकार ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, फरमाया जिसने कबूतर के एक घोंसले के बराबर अल्लाह के घर में हिस्सा डाल दिया अल्लाह ताला जन्नत में उसे महल अता फरमाएगा। कबूतर का घोंसला एक ईंट की मिसल है, अगर एक ईंट भी किसी ने अल्लाह के घर में लगा दी तो फरमाया कयामत तक उस बंदे का सवाब खत्म नहीं होगा। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतल इब्न सबीला, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी मुसाफिर खाने के लिए जगह वक्त कर दी, अल्लाह के बंदों के लिए कोई जगह वक्त की जैसे अल्लाह के बंदे दफा हासिल करते रहे। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया छठे नंबर पर फरमाया नहरन अजराहु, किसी ने कोई पानी का एहतमाम कर दिया, वे लोग इससे पानी पीते रहे और उस पानी से जब तक दुनिया फायदा लेती रहेगी बंदे को सवाब पहुंचता रहेगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने 7वें नंबर पे फरमाया सदक़तन अखराजहा मिन मालिही फी सिहतिही व हयातिही, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7वां नंबर ये है कि वो अल्लाह की राह में माल को सदका किया करे और वो दुनिया में जो सदका कर जाएगा जिस जिस पर खर्च होगा अगर वो नेकी की राह पे चल निकला तो उसकी नेकी का सवाब भी उस बंदे को मरने के बाद भी पहुंचता रहेगा। अब आबे इसी वकार माह रमजान का मुबारक महीना है और इस मुबारक महीने में हमने तयन किया हुआ है कि हम ज़कात देते हैं, फितराना देते हैं, तो जिस जिसके जिम्मे ये है वो अपना हक पूरा अदा फरमाए। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सदका से ज़कात फर्ज है, फितराना वाजिब है। और ज़कात फर्ज किस पे है? अल्लाह के महबूब के कुरान में जो आकिल और बालिग बंदा है उस पे पास जब माल आ जाए उस पर ज़कात क्या हो जाती है? फर्ज हो जाती है। ज़कात के फर्ज के लिए बंदे के पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या 52 तोले चांदी के मिसल रुपए अगर जमा हो जाए, इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज उस बंदे पर ज़कात फर्ज हो जाती है। उस बंदे पर ज़कात, अगर किसी के पास 52 तोले चांदी से आधे पैसे हैं, मुराद के 25,000 रुपया है और कुछ चांदी भी है, तो इनको मिलाने से अगर 52,000 रुपया हो जाए तो फिर भी ज़कात क्या हो जाती है? फर्ज हो जाती है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पर ज़कात फर्ज हो गई है, अब इसको ज़कात अदा करनी चाहिए। इसी तरह फितराना हर आकिल बालिग मुसलमान साहिब निसाब बंदे पर फितराना भी क्या है? वो फर्ज है, अपना फितराने को क्या करे? वो अदा करे। और वो एक दिन का भी बच्चा अगर घर में हो उस पर भी फितराना क्या है? वाजिब है, उस फितराने को क्या करना चाहिए? अदा करना चाहिए। तो ये सदकात फर्ज है। इसके अलावा अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के महबूब ने हमें तरगीब दी है, अपनी सुन्नत से साबित किया है, अल्लाह की राह में ढेर से ढेर माल खर्च किया करो। अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।